Assalamu alaikum. Good morning, dear students. I hope that all of you may be fine by the grace of Almighty Allah. Today, our lecture will be about very important topic, that is from the parts of speech, adverb. Because most of you are not able to understand what is adverb. You think that adverb is only that which adds to the meaning of the verb, but it is not only that. Yes, it also adds to the meaning of the verb, but it also adds to other things which I am going to express in detail in this lecture. I think that there may be 4 to 5 lectures upon this adverb, at least 4 to 5 lectures, because as you know that I consult so many grammars for you so that you will be able to understand anyway. But once again, before starting the lecture, I hope that now this channel, Salim Sir's Academy English for All, is now familiar to you, as most of you have subscribed and watched most of the videos, and you have shared already this channel. I am thankful to you. But once again, I hope that those who are new, they will subscribe this channel here, and they will share also, and they will watch all the videos which have been uploaded upon this channel. They will be helpful for you, and wherever you will think there is need of the improvement, you can send me the feedback in the comment section, and your feedback will be acceptable, inshallah. And once again, those who are new, for them, that this is for JKSSRB, for all posts, for JK post 10th and 12th class, for Kashmir University BG, that is graduation, all semesters from 1st to 6th, and also important English literature will be discussed here, that is masterpieces of the literature, English literature will be uploaded here. Thanks. I hope that you will enjoy. The new who are new, they will subscribe, they will share. I hope so. Thanks. Now we are going to start our lesson. This is in the syllabus of the Kashmir University second sem also. I have already made one lecture for them from the textbook, but they can also see from here. But it is, in general, it is special for everybody. This is a very good book, very good, very good. If anybody wants to recommend me the book, I recommend him this book. Its name is Dr. P.C. Das, Applied English Grammar and Composition. Now you will yourself see that what is adverb. According to me, beginning told you that it is very good book, special book. What the book says about the adverb, you can see here in the definition. What he says. This book says, and it says, an adverb is a word which qualifies any part of the speech except a noun or pronoun. मैंने आपको बार बार कहा है, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ाया था, जर्नल में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, उस वक्त भी मैंने आपको कहा है कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज टू द नाउन एंड प्रोनाउन. मगर जो एडवर्ब है, ये हर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड को ऐड करता है बगैर नाउन और प्रोनाउन. क्योंकि आपको मालूम है, जो नाउन और प्रोनाउन को ऐड करते हैं तो इसको एडजेक्टिव कहते हैं. यानी कि मगर आपको अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या है. यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो भी क्वालिफाई करेगा तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सक्लूडिंग नाउन और प्रोनाउन, इसको एडवर्ब कहते हैं. यानी कि दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकेंगे कि जो एडवर्ब है ये हर किसी वर्ड को ऐड करता है, खालिस नाउन और प्रोनाउन को नहीं. और दूसरी डेफिनेशन यहाँ उसने मैं लिखा भी है, किसने ये डेफिनेशन कहाँ, किस बुक से ली गई है, कौन कहने वाला है, यहाँ उसने लिखा है, आप देख भी सकेंगे. एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब. जो आपको मालूम है, ये वर्ब का मीनिंग, वर्ब जो, क्योंकि इसका नाम ही है एडवर्ब,
जो आपको आज तक भी मालूम था, एड मीन्स एड, वर्ब मीन्स मीनिंग ऑफ द वर्ब, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है। मगर ये इतना ही नहीं कर रहा है, फिर क्या इसके अलावा क्या कर रहा है, एन एडजेक्टिव और अंदर एडवर्ब। कभी कभी ये एडजेक्टिव को भी ऐड कर रहा है, कभी कभी दूसरे एडवर्ब को भी। वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे, एग्जाम्पल उसकी वजह से। मगर अभी हम डेफिनेशन पढ़ रही है, पहले आप डेफिनेशन समझो पूरी तरीके से। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, और एक डेफिनेशन इसने दी है, मैंने कहा ये बहुत अच्छा ग्रामर है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ द स्पीच। कोई भी, जो मैंने आपको पहले लिखा, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और ए होल सेंटेंस। कभी कभी एडवर्ब सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस होता है खाली वर्ड को नहीं मॉडिफाई करता, ये होल सेंटेंस को कभी कभी मॉडिफाई कर रहा है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, एग्जांपल की वजह से। हाँ, मगर आपको यहाँ एक बात याद रखना है, बहुत सारी ग्रामर मतलब ऐसे भी है, या बहुत सारे ग्रामर ऐसे जो ये भी कहते हैं कभी कभी एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को भी ऐड करता है, मगर वो मतलब एक्सेप्शनल है। वो आपको जनरल में याद नहीं रखना है। जनरल में आपको ये याद रखना है कि ये हर किसी पार्ट ऑफ स्पीच को ऐड कर रहा है बगैर नाउन और प्रोनाउन। यहाँ ये नोट आप मत देखिए कि ये नोट क्या है, मैंने इसलिए आपको कहा है कि यहाँ नोट में यही कह रहा है कभी कभी ये नाउन और प्रोनाउन को भी ऐड कर रहा है, मगर वो जनरल में नहीं है, वो एक्सेप्शनल है कभी कभी। हाँ, अब व्हाट इज़ एन एडवर्ब एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। अब हम देखेंगे एडवर्ब है क्या। पहले मैंने डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन थी। अब हम देखेंगे एडवर्ब है क्या, किससे एडवर्ब कहते हैं और इसकी काम क्या है। चलो देखेंगे, यानी कि इसका यूसेज क्या है। जैसे हमने टेंस का यूसेज पढ़ा है, जैसे हमने मॉडल ऑक्सिलरीज का यूसेज पढ़ा है, क्योंकि यूसेज कंपलसरी है। डेफिनेशन इतनी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में यूसेज पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं हर हमेशा आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ। जब भी मैंने टेंस पढ़ा है मैंने कहा यूसेज उसका, जब भी मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़े मैंने उसका यूसेज कहा। आज हम इस पर हैं एडवर्ब पर, तो इसका भी यूसेज हमें करना है। क्या है, हाँ अब देखेंगे एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई वर्ब। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि नाम से ही पता चलता है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देखो एग्जांपल से कैसे आपको समझ में आएगा। द फॉक्स रन्स क्विकली, यानी कि द फॉक्स, द आपको मालूम है आर्टिकल है, फॉक्स आपको मालूम है ये नाउन है, किसी का नाम है। हाँ, मैंने आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले ही पढ़ाया था, फिर भी हमें पढ़ना है अलग से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मैंने वहाँ थोड़ा डिफिनेशन दी है, मगर हमें फिर से अलग से पढ़ना है। नाउन किसे कहते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जैसे आज हम एडवर्ब पढ़ते हैं, इसी तरह हमें हर किसी पर 5-5, 6-6 वीडियोज़ बनाने हैं। आप देखेंगे द फॉक्स रन्स क्विकली, यानी कि द क्या है आर्टिकल, फॉक्स क्या है नाउन, रन्स क्या है वर्ब, भागना। ज़्यादातर वर्ब के पीछे उर्दू में ना होता है, ज़्यादातर, कंपलसरी नहीं है, ज़्यादातर। अब आपको यहाँ लग रहा है कि जो ये क्विकली, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्विकली, भागा तेजी से इसने मॉडिफाई किया है रन्स को, रन को या रन्स को आप कहो, यानी कि जो कि खुद क्या है, जो कि खुद वर्ब है। इसीलिए हम यहाँ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि एडवर्ब ऐड करता है वर्ब को। ओके गुड। और क्या है, एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। कभी कभी एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को भी। एडजेक्टिव जो मैंने आपको कहा है, जो कि खुद ऐड कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को। मिसाल के लिए लीला इज ए, पहले हम ऐसे पढ़ेंगे, लीला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है, यह एडजेक्टिव, क्योंकि उसने किसको ऐड किया है, गर्ल को। गर्ल खुद क्या है, नाउन। मैंने आपको पहले ही कहा है जो ऐड करेगा नाउन या प्रोनाउन को इसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए यहाँ ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। आप अब ये वेरी क्या है, वो ब्यूटीफुल है मगर ज़्यादा ही। ये वेरी ऐड किसको करता है, ब्यूटीफुल को। ब्यूटीफुल अभी मैंने आपको कहा वो एडजेक्टिव है। यानी कि हम यहाँ इस नतीजे पर पहुँचे कि एडवर्ब ऐड करता है कभी कभी किसको, एडजेक्टिव को भी। यानी कि वेरी मॉडिफाइज ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल जो खुद है वो खुद एडजेक्टिव है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। और क्या है, एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। कभी कभी एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है दूसरे एडवर्ब को भी। यानी कि और कोई एडवर्ब होता है तो
उसको भी ये मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मीनिंग को भी ये ऐड कर रहा है। अब हम देखेंगे कैसे, मतलब वो खुद भी एडवर्ब होता है, देखियो कैसे आपको समझ में आएगा। शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स, शी आपको मालूम है ये प्रोनाउन है, सिंग्स आपको मालूम है ये वर्ब है, वेल आपको मालूम है ये एडवर्ब है, क्योंकि वेल ने किसको ऐड किया है, सिंग्स को, काम को। अब यहाँ है एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली अब क्या है, इसने किसको ऐड किया है, वेल को। वेल खुद क्या था, एडवर्ब। अब एक्सट्रीमली ने एडवर्ब को भी ऐड किया है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कभी कभी एडवर्ब ऐड कर रहा है किसकी मीनिंग को भी, एडवर्ब के मीनिंग को भी। प्लीज़ वेट, अभी हमें बहुत सारे एक्सरसाइज करनी है, डोंट वरी। आप कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा मतलब मैं कहूँगा ये शॉर्ट में अभी है समरी टाइप जैसे, मगर अभी हमें बहुत करना है। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई प्रोपोर्शन। देखो कभी कभी एडवर्ब प्रोपोर्शन को भी ऐड करा है। जब मैंने आपको पार्टनर स्विच पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको कहा प्रोपोर्शन का मानी है प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स टू शो द पोजिशन। प्रोपोर्शन एक्चुअली पोजिशन दिखा रहा है टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, टू नाउन्स के दरमियान। जैसे मैंने उस वक्त भी आपको एग्जांपल दी थी पेन और बुक की, मैंने कहा पेन इज इन द बुक, पेन इज ऑन द बुक, पेन इज अंडर द बुक। मगर फिर से भी हमें इन ब्रॉड प्रोपोर्शन पढ़ने हैं, अभी हमने मतलब अलग उन पर नहीं वीडियोस बनाए हैं। द बर्ड फ्लेव ओवर आवर हेड, यानी कि परिंदे आपके सर के ऊपर उड़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, यानी कि आपको मालूम है जो अब ये ओआ है, ओआ क्या है खुद, ये ओआ आपको मालूम है ना, ऑन, एट, टू, ओआ, अक्रॉस, बिहाइंड, इनको हम प्रोपोर्शंस कहते हैं, इसलिए यहाँ ओवर प्रोपोर्शन है। तो अब प्रोपोर्शन ये देखो अब एग्जैक्टली यानी कि बराबर हमारे ऊपर, एग्जैक्टली किसको ऐड किया है, उसने ओवर को किया है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये एडवर्ब कभी कभी ऐड कर रहा है प्रीपोजिशन को भी। हाँ, और भाइयों एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई ए कंजक्शन। ये जो एडवर्ब है ये कभी कभी कंजक्शन को भी ऐड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। आप कहेंगे कैसे सर, मैं कहूँगा कंजक्शन आपको मालूम है जो दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को मिलाता है, इनको कंजक्शन कहते हैं। मिसाल एंड, सो, दस, बट, ये भी मैंने वहाँ पढ़ाए थे पार्ट ऑफ स्पीच में, वहाँ मैंने डिटेल में पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ कंजक्शन पढ़ाए थे। हाँ, अब क्या है, कैसे कर रहा है कंजक्शन को आप देखेंगे, हम आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। हाँ, आई डिसलाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज़ ए लायर। मिसाल अगर ये ऐसे भी हम कहते हैं आई डिसलाइक हिम बिकॉज ही इज़ ए लायर, यहाँ बिकॉज कंजक्शन है, इसने दो क्लॉजेस को कंबाइन किया है तो इसीलिए ये कंजक्शन है। तो अब हमें यहाँ क्या है, सिंपली, सिंपली ने किसको ऐड किया है, बिकॉज को। बिकॉज खुद क्या था, कंजक्शन। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो एडवर्ब है ये कभी कभी ऐड कर रहा है किसकी मीनिंग को भी, कंजक्शन के मीनिंग को भी। ओके, एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स मैंने आपको वहाँ कहे थे पार्ट ऑफ स्पीच में, तो फिर भी पढ़ने हैं। मिसाल डिटरमाइन मैंने आपको वहाँ कहा था दिस, दीज, दोज, एनी, और मैंने आपको कहा जो आर्टिकल होते हैं एन, द, वो भी डिटरमिनर्स में काउंट किए जा रहे हैं। अब ये कैसे इनको ऐड कर रहा है वही हमें देखना है। ही हैज़ एनी फ्रेंड, यानी कि उसको कोई फ्रेंड नहीं है। अगर आप कहेंगे ही हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड, और कोई नहीं है, हार्डली, हार्डली ने किसको मॉडिफाई किया है, इसने डिटरमिनर एनी को मॉडिफाई किया है। इसी तरह सेवंथ है एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई ए फ्रेज। आपको मैंने फ्रेज भी पढ़ाया था पहले ही लेक्चर्स जो मेरे हैं, वहाँ मैंने आपको कहा फ्रेज क्या होती हैं, तो आप उनको देख सकेंगे। क्योंकि अगर मैं आप यहाँ कहूँगा तो यहाँ तो फिर बहुत सारे लड़के कह रहे हैं सर आप डाइवर्ट हो रहे हैं। तो फ्रेज एक्चुअली आपको याद रखना है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये
कभी उसका फुल माने नहीं होता है, कभी नहीं होता है। द मशीन इज कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ जो आउट ऑफ ऑर्डर है ये क्या है, खुद ये फ्रेज है आउट ऑफ ऑर्डर। कौन है आउट ऑफ ऑर्डर मालूम नहीं है, इसलिए इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अब हमने लिखा है कंप्लीटली, कंप्लीटली ने किसको मॉडिफाई किया है, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर को, कंप्लीटली वो आउट ऑफ ऑर्डर है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए होल सेंटेंस, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, कभी कभी ये कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आप भी कहेंगे सर कैसे, मेरी अब एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज, अगर हम कहें अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, क्या हुआ बदकिस्मती से, उसने अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। यानी कि ये सारा सेंटेंस है, ये बदकिस्मती सारी सेंटेंस के लिए है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। 1 सेकंड, हाँ। अब हमें देखना है यूज़ ऑफ एडवर्ब। अब हमें इनको यूज़ कहाँ करते हैं, हाँ। एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड इन 3 वेज, ये आपको याद रखना है। एडवर्ब्स 3 तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनके 3 यूसेज हैं। एक है एट्रीब्यूटिव एडवर्ब, दूसरा है प्रेडिकेटिव एडवर्ब, तीसरा है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों ने ये नाम सुने होंगे आज तक, बहुत सारे ने सुना भी होगा। इसे मैं कहूँगा नहीं कहूँगा कि किसी ने नहीं सुना है। मैंने कहा कि ये जो ग्रामर है बहुत अच्छा है, उसने कम्प्लीटली एक्सप्लेन ये किया है। मगर आपको मालूम है कि मैं ये देख रहा हूँ कि किस ग्रामर में कौन सा सेक्शन अच्छा है, तो उसी पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। हाँ, एट्रीब्यूटिव एडवर्ब सब हमें देखने हैं। एन एडवर्ब इज यूज्ड एट्रीब्यूटली व्हेन इट क्वालिफाइज अनदर वर्ड आफ्टर इट। यानी कि एट्रीब्यूटिव का माने है जब ये किसी वर्ड के बिफोर होगा, इससे पहले, या दूसरे लफ्ज में हम कहेंगे जो उसके पीछे वर्ड होगा वो इसी को क्वालिफाई करेगा, इस वक्त इसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं। आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। ही डिड हिज वर्क बैडली, बैडली, वेरी। अब हम अगर ऐसे कहें ही डिड दिस वर्क वेरी बैडली, वेरी ने किसको ऐड किया है, बैडली को। यानी कि पहले वेरी है फिर बैडली है, यानी कि बैडली इसके आफ्टर है, इसीलिए इसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं। शी शाउटेड लाउडली, अगर हम अब ऐसे कहेंगे शी शाउटेड वेरी लाउडली, वेरी ने किसको ऐड किया है, लाउडली को। इट इज रॉन्ग, अगर हम आगे ऐसे कहें इट इज एंटायरली रॉन्ग, एंटायरली ने किसको ऐड किया है, रॉन्ग को। इसका माने ये है कि ये पहले है, इसके बाद वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रहा है। इसी तरह है प्रेडिकेटिव एडवर्ब। एन एडवर्ब इज यूज्ड predicatively when being placed in the predicate part qualifies it in the subject part and there is no other word after the adverb to qualify or modify। आपको फिर से कह रहा हूँ कि मैंने आपको ये प्रेडिकेट पढ़ाया था, वहाँ ही पार्ट ऑफ स्पीच में, वहाँ मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, डायरेक्ट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ में वो नहीं कहना है वाला हूँ। अब क्या है, इन शॉर्ट आपको याद रखना है, प्रेडिकेटिव में ये एन पर होता है, जो एडवर्ब होता है वो लास्ट पर होता है, उसके आफ्टर कोई सेंटेंस का क्लास या पार्ट नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं होता है। मिसाल, इट इज़ हियर, इट इज़ देयर, इट इज़ एवरीवेयर, जो एवरीवेयर है ये लास्ट पर है, यहाँ यही एडवर्ब है, इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है ये लास्ट पर है, प्रेडिकेटिव में लास्ट पर। और इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स when there are here is placed at the beginning of the sentence as introductory word, it is called introductory adverbs। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे थे जिनमें हम कहते हैं there he comes, there is mistake, there here हम यूज़ करते हैं, तो उनको हम introductory adverbs कहते हैं। मिसाल, when there is no cloud in the sky, there is no cloud in the sky कहते हैं ना वैसे ही। there are many boys in the class, हम ऐसे नहीं कहते many boys in the class, हम कहते there are many boys।
Their stand is a house by the river. Here is a man waiting for you. Here is a telephone call for you. यानी कि इन शॉर्ट जहाँ हम here there इस्तेमाल करते हैं तो इनको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स कहते हैं. और एक है लास्ट वाला एडवर्ब पार्टिसिपल्स. सम प्रिपोजिशंस सच एज, जो मैंने आपको पहले भी कहा है प्रिपोजिशन किसे कहते हैं, आप मैं बार बार नहीं कहूँगा. इन, आउट, अप, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट एटसेट्रा मे बी यूज्ड एज एडवर्ब्स. कभी कभी हम इनको भी एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं. दीज आर कॉल्ड एडवर्बल पार्टिसिपल्स. इनको एडवर्बल पार्टिसिपल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आएगी मेरी कहने का मतलब है. ही रेज्ड हिज हैंड्स अप. हैंड्स अप का यहाँ क्या दिखा रहे हैं, ये एडवर्ब. इसने काम क्या की है, अपने हाथ को क्या किया है अप. ये यहाँ प्रपोर्शन नहीं दिखा रहा है, ये एडवर्ब, इसलिए इसको एडवर्बल पार्टिसिपल्स कहते हैं. मे आई कम इन, यहाँ इन प्रपोर्शन रिलेशन नहीं दिखा रहा है, ये मतलब यहाँ काम को ऐड कर रहा है, अंदर आना. मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा. 1 सेकंड. हाँ, हमने तो ये वाला किया, ये भी किया. अब है काइंडनेस ऑफ एडवर्ब. मुझे लग रहा है कि काइंडनेस ऑफ एडवर्ब के लिए हम अलग से दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे लड़के कह रहे हैं सर ये ज़्यादा बड़े होते हैं. और अगर आप काइंडनेस ऑफ एडवर्ब पर हम आएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि 3 काइंडनेस हैं, फिर इनको अलग अलग पढ़ना है तो इसमें थोड़ा, क्योंकि हाँ इसमें ज़्यादा ही टाइम लगेगा. तो ये नेक्स्ट वीडियो हम उसके लिए बनाएंगे. Once again, those who are new to this channel, I hope that they have liked the video, and if they will watch all the videos which have been uploaded upon this channel, they will like them more, because it is free of cost education channel. And here is English for all. I once again say for them that there are separate playlists for JK SSRB all posts, JK BOS 10th and 12th, and Kashmir University graduation, that is from 1st to 6th semester, and important literature of English is discussed here. But what you have to do, you have to subscribe here, and also you have to watch all the videos. Also you have to share, because to share is care. If you care somebody, you have to share with him. I hope that you will share this, and also you will send your feedback, so that, because nobody is perfect in this world. One has to learn up till one leaves this world. One keeps one's body is kept in the grave. ये तो हमारा हदीस शरीफ भी है, यानी कि लहद से महद से लहद तक सीखना चाहिए. तो अगर किसी का भी कोई भी फीडबैक होगा, आई विल एक्सेप्ट दैट, बट द कमेंट शुड बी इन गुड वे. ओके, आई होप दैट you will see another lecture also. Okay, thanks. Assalamu alaikum.